Hello everyone. Let's start October-November 2022, variance 52, paper 5, planning, analysis and evaluation. Let's see what we have in the paper. So seems like this paper has eggshell contain a high percentage by mass of calcium carbonate. Percentage by mass of calcium carbonate. तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ऑब्वियसली. Percentage by mass equals to mass of calcium carbonate over mass of eggshell यानी total mass. ठीक है, mass of eggshell, that is total mass into 100. Okay, that's how we can find out the percentage by mass of calcium carbonate. A student wants to find out what percentage of an eggshell is its calcium carbonate and uses the following method. Okay, this method uses a known excess of acid to dissolve the eggshell. Okay, हम excess acid क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हम मेक श्योर करें कि सारे का सारा एगशेल जो है वो रिएक्शन कर ले. टू मेक श्योर all calcium carbonate which is found in the eggshell reacted. Okay. The amount of unreacted acid is then determined by titration with an alkali. Okay. Unreacted acid का मतलब क्योंकि एसिड एक्सेस अमाउंट के अंदर है तो कुछ एसिड जो है वो एगशेल में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन कर लेगा और जो रिमेनिंग एसिड होगा जो कि बेसिकली अनरिएक्टेड एसिड है वो फिर एल्कली के साथ रिएक्शन करेगा बाय टाइट्रेशन. तो ये जो अनरिएक्टेड एसिड है ये बेसिकली रिमेनिंग एसिड. All right. Assume that acid only reacts with calcium carbonate in the eggshell. Okay. वो कह रहे हैं आपसे एल्कली के साथ टाइट्रेशन करनी है. तो अगर टाइट्रेशन एल्कली के साथ करनी है तो ऑब्वियसली उसका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना होगा. We should have a standard solution of this. और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब जिसकी कंसंट्रेशन नोन होगी. Standard solution of known concentration. ठीक है. Weigh an empty eggshell with distilled water. Okay. Warm the eggshell in an oven for a few minutes until dry. ठीक है भाई. Dry until dry. Now the question is कि few minutes until dry कैसे पता चलेगा कि dry हो गया है? पता चलेगा जब constant mass observe होगा, right? तो आप ये लिखेंगे until constant mass is observed. तब ड्राई हो चुका होगा. फिर वो कह रहे हैं ग्राइंड द एगशेल इनटू अ पाउडर. व्हाई पाउडर? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. All right. Weigh approximately 2 grams of eggshell powder into a conical flask. Okay. Using a balance which measures to 3 decimal place. Another very important thing, मैंने आपको बताया कि जब 3 decimal place का बैलेंस यूज करते हैं तो एरर इन सिंगल रीडिंग क्या आता है?
ये मैंने आपको एरर इन मेजरमेंट्स में पढ़ाया है 0.0005 ग्राम। ओके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, add 100 cm cube of 2 mole per dm cube hydrochloric acid to the conical flask. Okay. Okay. तो हमने 2 ग्राम एगशेल लिया है पाउडर फॉर्म में इनटू द कॉनिकल फ्लास्क, और फिर उसके बाद हमने 100 cm cube of 2 mole हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉनिकल फ्लास्क में प्लेस किया। Loosely cover the conical flask and leave for 2 days. Okay, that's important point. Loosely cover the conical flask and leave for 2 days. Now the point is कि भाई मैं लूजली कवर क्यों कर रहा हूं। आप जानते हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन होगा एसिड से, लेट सपोज आपने HCl यूज किया है, तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। तो जाहिर सी बात है जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो अगर ये लूजली कवर नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो एक्यूमुलेट होगा इनसाइड द वेसल और वेसल बर्स्ट हो जाएगी। सो टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ दैट प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमने इसको लूजली कवर करना है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड स्लोली एंड ग्रेजुअली पास हो सके। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लूजली कवर just to prevent uh, the accumulation of pressure of carbon dioxide inside the conical flask. So loosely cover to escape carbon dioxide. Why? उसकी रीजन मैंने लिख दिया आपको। ठीक है, ये रीजन हो गई कि हमने लूजली कवर क्यों किया और क्यों लूजली कवर किया है, ये रीजन आ गई आपके पास। ओके, फिल्टर द कंटेंट ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क। फिल्टर क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि अगर कोई इनसॉल्युबल सॉलिड है तो उसको रिमूव किया जा सके। रिमूव एनी insoluble solid or substance with any rinsing into 250 cm cube volumetric flask and top up to the mark using distilled water. Okay, rinsing जो है वो तो distilled water से ही होती है ऑब्वियसली। ठीक है, लिखा हुआ भी है उसने, और मैंने उसका जो सोल्यूशन है वो टॉप अप करना है 250 cm cube वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। उसके बाद वो कह रहे हैं ट्रांसफर 25 cm cube ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड इन स्टेप 7 इनटू द कॉनिकल फ्लास्क। यानी मैंने पहले 250 cm cube मेकअप किया, फिर इसमें से मैंने 25 cm cube उठाया, कॉनिकल फ्लास्क में डाला। Add few drops of thiamol blue indicator and titrate against 1 mole per dm cube sodium hydroxide। मैंने आपसे कहा था कि जब आप एल्कली यूज करते हैं उसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, यानी उसकी कंसंट्रेशन नोन होती है। सी वी हैव अ नोन कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना हुआ है। और जाहिर सी बात है ये NaOH 50 cm cube ऑफ ब्यूरेट यानी ब्यूरेट के अंदर है। ठीक है, द कैल्शियम कार्बोनेट इन द एग शेल विद एन एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज फॉलोज। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिख के भी दिया है आपको कि सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। जो HCl रह जाएगा, रिमेनिंग HCl जिसको मैंने कहा था, जिसको हम एक्सेस एक्सेट कह रहे हैं, वो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, और जब वो रिएक्शन करेगा तो दोनों के दरमियान 1:1 का रेशो होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ the student could confirm the eggshell is completely dry in step 2। so मैंने आपको कहा था कि भाई आप उसको वार्म करोगे ओवन के अंदर until you will get a constant mass, right? Heat the eggshell
until constant mass is observed. ओके और कहां ऑब्जर्व होगा कांस्टेंट मास बैलेंस पे, ऑन द मास बैलेंस. All right. State why the eggshell is made into a powder in step 3 before making up the solution. Explain your answer. Just to increase the surface area. Just to increase the surface area. जब surface area जब increase हो जाता है फिर क्या होता है? जाहिर सी बात है collision frequency हो जाती है, rate of reaction increase हो जाता है. So just to increase the surface area, so collision frequency increases. Hence rate of reaction increases. All right. Next, suggest why the solution is left for 2 days in step 6 before being used, so that जो eggshell है वो completely react हो जाए acid के साथ. ठीक है. To ensure that all the eggshell has been reacted with the acid. दो दिन क्यों लगे? 2 दिन इसलिए लगे क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, बावजूद इसके कि मैंने एग शेल को ग्राइंड करके पाउडर में कन्वर्ट कर लिया है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, फिर भी 2 दिन ले रहा है, जस्ट बिकॉज के रिएक्शन रेट स्लो है. सॉल्यूशन left for 2 days because reaction rate is slow. Because reaction rate is slow. Okay. Let's move on to the next page. The student uses exactly 2.13 gram of powdered eggshell. Okay, that's interesting. मुझे mass of eggshell दे दिया गया and obtain the results shown in the table 1.1. Okay, ठीक है जनाब, टेबल शो कर दिया हमें. ब्यूरेट में हमने क्या लिया था, अगर आपको याद हो? मैंने कहा था ब्यूरेट में हमने लिया है 50 cm³ 1 mole per dm³ NaOH. इसका मतलब ये जो टाइटर वैल्यूज मिल रही हैं ये NaOH की हैं. ठीक है, ये लिख देते हैं कि ये जो टाइटर वैल्यूज हैं ये बेसिकली 1 mole per dm³ NaOH की है. मोलर NaOH, क्योंकि ब्यूरेट में हमने 1 molar dm³ NaOH लिया था. इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 16.55 और ये रफ वैल्यू है. इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? कैलकुलेटर में मेरे पास आ रहा है 16.30, ये लिख लेंगे हम. ठीक है, इन दोनों का मेरे पास डिफरेंस कितना आ रहा है? 16.00. इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है? 16.20. एंड ऑब्वियसली इन दोनों के दरमियान 0.2 का डिफरेंस है, जो कि मुनासिब बात नहीं है, हम 0.1 का डिफरेंस लेते हैं, लेकिन इन दोनों में 0.1 का डिफरेंस है. इसका मतलब मेरे लिए जो बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स हैं वो 1 और 3 होगा. और मैं इसी को यूज करके
मीन टाइटर कैलकुलेट कर लूंगा। ऑलराइट, सो अगर मुझे मीन टाइटर कैलकुलेट करना होगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 16.30 प्लस 16.20 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास यहां से आंसर आ जाएगा 16.25। तो मीन टाइटर वैल्यू आ गई NaOH की 16.25। ओके, अब आप नोट करो, मुझे NaOH का वॉल्यूम मालूम है, मुझे NaOH की कंसंट्रेशन मालूम है, तो सबसे पहले मैं NaOH के मोल्स कैलकुलेट करूंगा इसके थ्रू। जो मोल्स NaOH के आएंगे उसके थ्रू HCl के मोल्स निकालूंगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान 1:1 का रेशियो होता है। So calculate the amount in moles of unreacted HCl in the solution prepared in step 7. Show your working. भैया वो हमसे मांग रहे हैं moles of unreacted HCl। तो सबसे पहले moles of NaOH कंसंट्रेशन मुझे मालूम है 1.00, वॉल्यूम मैंने कैलकुलेट किया 16.25, टाइट्रेशन वैल्यू डिवाइडेड बाय 1000। सो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे 16.25 divided by 1000, my goodness, 16.25 divided by 1000, 0.01625। ओके, ये मेरे पास मोल्स ऑफ NaOH आ गए। अब भाई मैं जानता हूं कि NaOH और HCl दोनों के दरमियान 1:1 का रेशियो है। ऑलराइट, सो अगर आपने 0.01625 मोल्स कैलकुलेट किए थे तो मोल्स ऑफ HCl कितने हो जाएंगे यहां से? मोल्स ऑफ HCl अनरिएक्टेड कितना हो जाएगा, जो कि हमसे एग्जामिनर कैलकुलेट करवा रहे हैं? uh, 0.01625 मोल्स, यानी ये वो मोल्स ऑफ HCl है अनरिएक्टेड जिन्होंने NaOH से रिएक्शन किया था। 0.01625। सो मुझे 4 सिग्नल 0.1625 है, तो 0.163 राउंड ऑफ करके कर लेते हैं, 0.163। ठीक है, नेक्स्ट इज calculate the amount in moles of calcium carbonate that reacts with excess of acid. Use your answer to calculate the percentage by mass of calcium carbonate in the eggshell. Show your working in 3 marks का part है। So इसका मतलब we need to do a lot of work because मेरे पास unreacted HCl है, फिर मैं reacted HCl निकालूंगा, फिर दोनों को subtract करूंगा। Okay, okay, तो it's going to be a lot of working। एक चीज पहले देख लीजिए कि एग्जामिनर आपसे अमाउंट इन मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मांग रहे हैं जिसने एक्सेस एसिड से रिएक्शन किया था। अच्छा, HCl का ये जो अमाउंट आया है ये एक्चुअली 25 cm³ में आपने कैलकुलेट डिटरमाइन किया है, ये रहा, सही है। ये आपने 25 cm³ ट्रांसफर किया था ना वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, तो ये HCl आपने वॉल्यूम यूज किया था, राइट। सो मेक श्योर कि बहुत समझदारी से बात सुने। तो 25 cm³ आपने जब लिया था तो आपके पास उसमें HCl के मोल्स कितने थे? 0.0163 मोल्स ऑफ HCl। जाहिर सी बात है आपने ये 25 cm³ 250 में 250 से लिया था, तो 250 cm³ में कितना हो जाएगा, यानी डाइल्यूशन हो रही है, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ HCl unreacted 0.163 मोल्स। ठीक है, आपके पास एसिड की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम भी था, कहाँ था, ये लिखा हुआ, ये रहा 100 cm³ एंड 2 मोल पर DM³ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपने यूज किया था कॉनिकल फ्लास्क में, है ना।
सो मैं यहां से टोटल मोल्स ऑफ HCl निकाल लूंगा, तो ये हो जाएगा 2.00 into 100 डिवाइडेड बाय 1000। तो मेरे पास मोल्स ऑफ HCl कितने आ जाएंगे बेटा यहाँ पर? 0.200 मोल्स। आई थिंक सो ये अनरिएक्टेड मोल्स नहीं है, ये बस मोल्स ऑफ HCl कर लेते हैं इनको हम, ठीक है। दीज आर द मोल्स ऑफ HCl, दैट्स इट। क्योंकि ये अनरिएक्टेड है, फिर ये टोटल है। अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास वो मोल्स आ जाएंगे HCl से जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे। ऑलराइट, तो मेरा नेक्स्ट पार्ट है मोल्स ऑफ HCl reacted with कैल्शियम कार्बोनेट। इनिशियली कितने थे मेरे पास? 0.200। उसमें से अनरिएक्टेड कितने हैं? 0.163। तो रिएक्ट कितने हो जाएंगे? 0.0370 मोल्स। तो ये वो मोल्स हैं जो कि बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, कैल्शियम कार्बोनेट में और HCl में 1:2 का रेशो है। अगर आपने 0.0370 मोल्स कैलकुलेट किए थे तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास कितने हो जाएंगे? 0.0370 divided by 2, you will get what? You will get 0.0185 moles. All right, मैं यहां से मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो मुझे MR ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मालूम करना है। कैल्शियम कार्बोनेट का MR है 100.1, ठीक है। तो अगर मुझे मास कैलकुलेट करना हो कैल्शियम कार्बोनेट का तो ऑब्वियसली मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा MR से, तो मेरे पास मास आ जाएगा 1.852। ऑलराइट, सो परसेंटेज बाय मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लूंगा विच इज 1.852 ग्राम, और मैं उसको डिवाइड करूंगा मास ऑफ एगशेल से। तो मास ऑफ एगशेल आपने कितना लिया था? वो तो आपने ये लिया था 2.136 ग्राम। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2.136 ग्राम इंटू 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 86.7%। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि ये किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है। हाँ, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, लेट मी रीफ्रेम इट। थोड़ा तरीके से लिख देते हैं, या मेक सेंस नाउ। ऑलराइट, let's move on to the next part of the question, and this question says name a suitable piece of apparatus which could be used to transfer 25 cm cube of solution in step D। चलते हैं step D पे। step D पे 25 cm cube of solution, step D में हमने conical flask में लिया था। तो कहाँ से लिया था? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से लिया था ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं 25 cm क्यूब सोल्यूशन इन स्टेप 6। तो 25 cm क्यूब सोल्यूशन लेने के लिए वैसे उसने यहाँ पर बहुत एक्यूरेट बोला हुआ है 25.00 cm क्यूब, इसका मतलब इट नीड्स टू बी ब्यूरेड। लेकिन क्योंकि फिक्स्ड वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं हम और ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो फिक्स्ड वॉल्यूम ट्रांसफर करने के लिए हम हमेशा पिपेट यूज करते हैं। सो आई विल यूज पिपेट हियर, यानी मैं पिपेट यूज करूंगा। ये पिपेट 25 cm क्यूब सोल्यूशन मेजर करेगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से और ट्रांसफर कर देगा कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, ठीक है। Next, in step 4, a conical flask is weighed using a balance accurate to 3 decimal places and the mass recorded. The eggshell is placed in the conical flask and the mass increases by this.
calculate the percentage error measuring the mass of this eggshell. Okay. So मैंने आपको तो पहले ही कहा हुआ है कि मेरे पास वेइंग बैलेंस है 3 डेसिमल प्लेस का। तो मेरे पास जब वेइंग बैलेंस था 3 डेसिमल प्लेस का, तो एरर इन सिंगल रीडिंग मैंने कितनी बताई थी आपको? 0.0005 ग्राम सिंगल रीडिंग, राइट? तो हम यहाँ बता देंगे एरर इन सिंगल रीडिंग 0.0005 ग्राम फॉर 3 डेसिमल प्लेस। मुझे कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए मैं एरर इन सिंगल रीडिंग में लूंगा 0.0005, और क्योंकि मैं इनिशियल मास और फाइनल मास दोनों को यूज करूंगा ताकि मुझे ये मास मिल जाए, राइट? तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा क्योंकि मैं 2 रीडिंग्स लेता हूं, डिवाइडेड बाय द मास 2.136 into 100। आई मस्ट से कि मेरे पास आंसर कितना आएगा? 0.0468%। तो हम यहाँ लिख देंगे 0.0468%। ओके। ओके। Next is state the effect on the percentage by mass if the eggshell is not completely dried in step 2. Explain your answer. Okay. आप जानते हैं कि जब वो completely dry नहीं होगा तो जाहिर सी बात है eggshell के अंदर moisture होगा। अब जब वो moisture होगा तो जाहिर सी बात है mass of eggshell जो है वो expected से ज्यादा आएगा। जब mass of eggshell expected से ज्यादा आएगा तो जाहिर सी बात है ये mass ज्यादा होगा। जब ये mass ज्यादा आएगा तो percentage error कम हो जाएगा। ऑलराइट, हम यहाँ लिख देते हैं if eggshell is not completely dried, then mass of eggshell is greater than expected. Hence, percentage error would be smaller than. Percentage error would be smaller. यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि percentage error जब आप लेते हैं तो error in single reading over value given into 100 है। सो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये ज्यादा हो जाए आपके पास तो ऑब्वियसली ये लोअर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट रिपीट्स द मेथड यूजिंग द सेम apparatus but decide to use 0.10 mole per dm cube NaOH to reduce the risk of corrosion or damage to eyes. Explain how this introduces a weakness to the experimental procedure. तो 1 मोल पर डीएम क्यूब हमने NaOH यूज किया था, if you remember, और अब हम यूज कर रहे हैं 0.1 मोल। तो इसका मतलब हमने 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया सोल्यूशन को। सही है। ओके बेटा, जब हमने 1 मोल पर डीएम क्यूब यूज किया था ना तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आया था? 16.25, राइट? और जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे 0.1 में, यानी 10 टाइम्स डाइल्यूशन करेंगे, तो मैं 16.25 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 162.5 cm क्यूब।
तो ये जो 162.5 cm क्यूब का वॉल्यूम है, ये तो आप जाहिर सी बात है मल्टीपल ब्यूरेट रीडिंग्स यूज करोगे, रीफिल करने के बाद ही कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? तो बेसिकली इतना जो वॉल्यूम है वो तो मेजर ही नहीं हो सकता burette single burette ring through, which is why we need to fill the burette multiple times, and this makes the weakness in the experiment. Okay, कि इतना सारा वॉल्यूम हम मेजर बार बार करना पड़ेगा हमें, which is not a good idea at all. ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे from 1 mole per dm cube NaOH to 0.1 mole per dm cube, it is diluted 10 times, right? This means we need 10 times more volume of NaOH, like 162.5 cm cube. ठीक है ना? Because one titer has a volume of 16.25, तो अगर 10 टाइम्स टाइट्रेशन करनी पड़ेगी तो 10 टाइटर्स वैल्यूज होंगी, उसके लिए 10 टाइम्स वॉल्यूम चाहिए आपको, which is going to be 162.5. Obviously we cannot measure this big volume from burette, hence need, my goodness, my writing's really bad, hence need to fill the burette multiple times, जिसकी वजह से वीकनेस होगी. ठीक है? Oh, that's the end of question number 1. Let's move on to the next question. Let's see what we have in it. Okay. It is possible to measure the rate at which potassium magnate 7 Mr158 Mr given है, diffuses through a permeable gel using the following method. तो ये एक पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश के अंदर हमने परमिएबल जेल लगाया हुआ है ये, और एक होल के अंदर, और इस होल के अंदर हमने KMnO4 को प्लेस कर दिया. ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, और जरूरी भी है, आप जानते भी हैं कि पोटेशियम मैग्नेट 7 यूज कर रहे हैं बिकॉज इट हैज पर्पल कलर. तो इसका मतलब ये कलर डिफ्यूज होगा इस परमिएबल जेल के थ्रू. ठीक है, आगे चलते हैं. A petri dish is prepared with a permeable gel. ठीक है, a hole of diameter 0.5 centimeter is cut in the center of the permeable gel. यानी ये जो डायमीटर है ना आपके पास, this one, ये आपका है 0.5 centimeter. ठीक है, this whole diameter is going to be 0.5 centimeter. ये कह रहा हूं मैं, make sense now, 0.5 centimeter. ठीक है,
A sample of KMNO4 is placed into the hole at the same time a stopwatch is started. यानी मुझे टाइम नोट करना है, ठीक है, मुझे क्या नोट करना है, टाइम नोट करना है। ओके तो मैंने KMNO4 का सोल्यूशन इस जगह पे रखा और फिर वो डिफ्यूज होना शुरू होगा ऑब्वियसली। Next is after 3 minutes the diameter of the colored spot is measured and recorded. 3 minutes के बाद आपने इसको रिकॉर्ड करना है। Then after that the diameter is measured every 3 minutes until there are 3 successive equal measurements. Okay, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ ना कुछ टाइम टेबल शेबल दिया हुआ है। तो डायमीटर ऑफ द कलर्ड स्पॉट ये था इनिशियली, और जाहिर सी बात है डिफ्यूज हुआ ही नहीं तो 0 रहा। फिर 3 मिनट्स के ऊपर ये वैल्यू आई आपके पास, और ये वैल्यू इस तरह से चलती चली गई। आप नोट करें यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू कांस्टेंट है और ये वैल्यूज भी कांस्टेंट है, ठीक है। यानी यहाँ पर आकर मामला स्टॉप हो गए, कांस्टेंट हो गई वैल्यू, ठीक है। अब इशू ये है कि वो आपसे ऑब्वियसली ग्राफ प्लॉट करवा रहे हैं। Plot a graph on the grid to show the relationship between diameter increases and the colored spot in time. Use a cross X to plot each data point. Draw a line of best fit. तो टाइम का इशू था, टाइम के इशू की वजह से मैंने ये जो ग्राफ है ये प्लॉट करके पहले से रखा है। ऑब्वियसली आप इसको प्रॉपर प्लॉट करेंगे, एक प्रॉपर ग्राफ पेपर लेकर आप ये सारे पॉइंटर्स प्लॉट करेंगे। वाई एक्सिस के ऊपर डायमीटर इंक्रीज इन कलर्ड स्पॉट है, यानी ये है, ठीक है, ये है आपके पास वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है। तो इन दोनों के दरमियान ग्राफ बनाए, तो ये आप बना के देखेंगे प्रॉपर, ठीक है। मैंने बनाया है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज और आपके सामने है। और जाहिर सी बात है ये पॉइंट जो है ये इस पूरे के पूरे स्केच से सबसे ज्यादा दूर है, इसलिए मैंने इसको एनोमलस पॉइंट का नाम दे दिया है। ओके, जितने पॉइंट्स आप ड्रॉ करेंगे वो सारे के सारे क्रॉस होने चाहिए। आप जानते हैं जो क्रॉस होता है वो इतना आसानी से नजर आ जाता है, लेकिन जो बाकी क्रॉस होते हैं वो इतना आसानी से नजर नहीं आते, ठीक है। तो डॉट नहीं लगाइएगा, क्रॉस लगाइएगा, क्योंकि डॉट जो होता है वो पेपर स्कैन होते हुए नजर नहीं आता फिर आपको। ओके तो वो हमसे कह रहे हैं ऑन द ग्राफ सर्किल द पॉइंट विच यू बिलीव टू बी द मोस्ट एनॉमलस। वो मैंने एनॉमलस कर दिया, सर्किल कर दिया, बता दिया। सजेस्ट द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस अनोमली, अनोमली की पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। देखो ग्राफ ये जो पॉइंट है ना, इट हैज टू बी हियर, राइट, इसको यहाँ होना चाहिए था समवेयर, ठीक है। सो डायमीटर जो है वो यहां पर होना चाहिए था, आया यहां पर है। तो लोअर डायमीटर हमने मेजर किया है एज एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। तो अगर लोअर डायमीटर मिला हमें और होना यहाँ चाहिए था, एक्सपेक्टेड से कम ही मिला है ना मुझे, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये लोअर डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है एज कंपेयर टू देन एक्सपेक्टेड। इसका मतलब हमने इस स्पॉट को डिफ्यूज होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया, और हमने डायमीटर को जो है ना वो पहले रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, जल्दी रिकॉर्ड कर लिया। मींस व्हाट आई एम सेइंग इज कि दिस पॉइंट हैज टू बी हियर बट इट इज हियर नाउ। इसका मतलब ये वैल्यू कम है, इसका मतलब ये हुआ कि लोअर डायमीटर हमारे पास आया एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड। ओके, विच मींस हमने डिफ्यूज होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया। सारी बात है, डिफ्यूज इस तरह से होता है ना ये, तो डिफ्यूज होने के लिए हमने ज्यादा टाइम नहीं दिया और हमने डायमीटर को बहुत अर्ली रिकॉर्ड कर लिया, जिसकी वजह से ये अनोमलस पॉइंट जनरेट हुआ। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दैट पॉइंट is a lower diameter
than expected. Okay. So we did not give enough time to diffuse hence we record the diameter too early. All right. I hope it makes sense to you. I hope it makes sense to you. Now the next is draw a suitable tangent. मैंने ये tangent draw किया आपके लिए, ठीक है, और मैंने tangent बहुत मुश्किल से ये draw किया है because उसकी वजह ये है कि वो हमसे कह रहे थे कि आपने 15 मिनट्स पे tangent draw करना है, राइट? तो ये tangent यहाँ से नहीं draw हो पा रहा था, मतलब यहाँ से नहीं draw हो पा रहा था, तो हमने इस 15 मिनट्स से, ये 15 मिनट्स है ना हमारा, इस पे से draw किया फिर हमने, and this is the best line I have received, तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, आप भी इसी तरह से बना के देख लीजिएगा और आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है? वो कह रहे हैं कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ योर टेंजेंट। ग्रेडियंट क्या होता है? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, राइट? यानी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। कल इससे पहले वाले पेपर में भी बताया। स्टेट बोथ सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स यूज्ड इन योर कैलकुलेशन। द स्टेटेड कोऑर्डिनेट्स must be from your tangent. Give the gradients to 3 significant figures. A lot of information actually he is asking. सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स वो लूंगा जो कि सबसे आसान होंगे, और सबसे आसान कोऑर्डिनेट्स जो मुझे नजर आ रहे हैं वो एक्चुअली ये है, और इसका y एक्सिस 0 है और इसका x एक्सिस जो है वो 0.85 है आई बिलीव, ठीक है? x एक्सिस तो 0 हो गया, y एक्सिस पे 0.85 है, या सही है? ये बेटा 0.5, ये 0 है, ये 0.5 है, ये 1 है, तो इसका मतलब ये 0.5 हो गया आपका और ये 0.85 हो जाएगा समवेयर अराउंड, ठीक है? दूसरा सबसे आसान मैं ये ले लेता हूं, दिस पॉइंट। वैसे ये पॉइंट लगाते नहीं है बट मैंने आपके रेफरेंस के लिए लगाया है, ठीक है? इसमें मेरे पास है जनाब 3.0 अप्रोक्सीमेटली और यहां से है 17.5 और 3.0, तो ये हो जाएगा आपके पास 17.5 एंड 3.0। ऑलराइट, ये मेरे दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को उठाता हूँ और मैं अपने पास लिख लेता हूँ, और ऑब्वियसली लिखते हुए इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि आपने ब्रैकेट मेंशन करना है। तो ये हो जाएगा 17.5 एंड 3.0, और फिर दूसरा है आपके पास 0.0 एंड देन 0.85। तो अगर मुझे यहाँ से कोऑर्डिनेट्स डिटरमिन करने हैं, सॉरी ग्रेडियंट डिटरमिन करना है, तो ग्रेडियंट मेरे पास था डेल्टा y over delta x, that is y2 minus y1 and x2 minus x1। सो वैल्यूज मेरे पास है, मैं प्लग इन कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपके पास 3.0 माइनस 0.85 डिवाइडेड बाय 17.5 माइनस 0, तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास आएगी 2.15 डिवाइडेड बाय 17.5, so it's going to be how much? 0.123। तो ग्रेडियंट मेरे पास आ जाएगा 0.123, और वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कह रहे हैं इसलिए 0.123 लिखेंगे हम, सही है? नहीं, 0.12 लिखेंगे हम क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कह रहे हैं, राइट?
फिर वो कह रहे हैं सिलेक्ट अप्रोप्रिएट डेटा फ्रॉम टेबल 2.1 एंड कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ KMnO4 इन सेंटीमीटर मिनट इनवर्स। टेबल 2.1 से मैंने काम करना है, टेबल 2.1 से मैंने काम करना है, टेबल 2.1 से मैंने काम करना है। ओके, टेबल 2.1, ये रहा टेबल 2.1। गाइस आप नोट करें, इस टेबल 2.1 से मेरे पास ये वैल्यूज हैं, है ना, और यहाँ तो एंड हो गया था, इसके बाद तो कोई चेंजेस नहीं आई। माय गुडनेस, इसके बाद तो सारी चीजें कांस्टेंट हो गई थी, है ना, यानी यहां से लेकर यहां तक नो फर्दर चेंज। तो मेरे पास टोटल टाइम कितना आ गया यहाँ से, 30 मिनट्स। टोटल टाइम मेरे पास कितना आ गया, 30 मिनट्स, राइट। और मेरे पास यहां से लेकर यहां तक टोटल जो डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है या डायमीटर आपने लिया है वो है 3.6 सेंटीमीटर। टोटल डायमीटर इंक्रीज कितना है, 3.6 सेंटीमीटर, राइट। तो मेरे पास डायमीटर भी है, मेरे पास मिनट्स भी हैं, मैं इन दोनों के थ्रू कैलकुलेट कर सकता हूँ। एक वैल्यू है मेरे पास 3.6, एक है 30 मिनट्स। सो अगर मुझे एवरेज रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना हो, अगर मुझे एवरेज रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना हो, सो गाइस मैं एवरेज रेट अगर मुझे निकालना हो तो मेरे पास वैल्यू कितनी थी 3.6 और टाइम कितना था मेरे पास 30 मिनट्स। तो मेरे पास यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 0.12। और जाहिर सी बात है ये क्या है सेंटीमीटर और ये क्या है मिनट्स, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर मिनट इनवर्स। और आप नोट करें मेरा ये आंसर मेरे ग्रेडियंट वाले आंसर से टैली भी हो रहा है, ठीक है, ऑलराइट। नाउ द नेक्स्ट इज ओके वेट, ये हो जाएगा 0.12, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस एक्सपेरिमेंट। भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जून सीरीज करवाते हुए मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस किया है, आज फिर बता देते हैं कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, व्हाट यू चेंज, और आप इस एक्सपेरिमेंट में चेंज क्या कर रहे हो, टाइम, है ना, हर 3 मिनट इंटरवल्स ले रहे हो आप, हर 3 मिनट के बाद चेंज कर रहे हो टाइम, सही है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो टाइम है एक्स एक्सिस पे, तो जो एक्स एक्सिस पे होता है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो व्हाट यू चेंज इज बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज टू बी ऑन द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास क्या है, टाइम। और टाइम एग्जामिनर ने वहां कितना दिया हुआ है, मिनट्स में, तो टाइम इन मिनट्स लिख दीजिए। नेक्स्ट इज सजेस्ट हाउ द एक्सपेरिमेंट कुड बी मेड टू मोर रिलायबल। रिलायबिलिटी उस वक्त होती है जब आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिल जाएं, ठीक है। तो और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, जब आप एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करोगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि repeat the experiment until consistent results are obtained. Okay. Next is another compound of potassium which is colored is potassium dichromate 6. इसका MR ये है, ठीक है। ओह दैट्स इंटरेस्टिंग, इसका MR ये है, ठीक है।
K1O4 का MR उसने दिया हुआ था आपको 158 और K2Cr2O7 का भी MR बता दिया 294। वो कह रहे हैं दिस कंपाउंड इज corrosive when aqueous. It is possible to use the method described earlier to determine the rate of diffusion. Predict how the graph obtained for K2Cr2 would differ from that obtained for K1O4. Explain your answer. अच्छा, आपने ओ लेवल केमिस्ट्री पढ़ी है और ओ लेवल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि जनाब जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो डिपेंड करता है एमआर पे। तो K1O4 का भी एमआर आपको पता है 158 होता है। तो हमने तो आपको ये कहा था ओ लेवल केमिस्ट्री में कि अगर एमआर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, तो इसका मतलब K2Cr2O7 का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। सही है। इसका मतलब जो K2Cr2O7 के पार्टिकल्स होंगे वो बहुत स्लोली डिफ्यूज होंगे। इसका मतलब जो कर्व आपके पास K1O4 का है उससे लेस स्टीपर बनेगा, यानी अगर K1O4 का ये है तो ये बेसिकली इस तरह का बन रहा होगा। ठीक है, लेस स्टीपर कर्व होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं rate of diffusion depends on MR. Higher the MR, lower the rate of diffusion. इसका मतलब particles of K2Cr2O7 diffuses more slowly, hence less steeper curve and gradient is obtained ठीक है। वो कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर स्टेट वन वेरिएबल विच मस्ट बी कंट्रोल व्हेन कंपेयरिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ K2Cr2O7 इन K1O4। यार मसला ये है कि जाहिर सी बात है रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए विच इज गोइंग टू बी योर कंट्रोल वेरिएबल। लेकिन एग्जामिनर ने तो खुद कह दिया कि टेम्परेचर के अलावा बताओ क्या होगा। आप जानते हैं कि ये भी एक्वस मीडियम के अंदर है, ये भी एक्वस मीडियम के अंदर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सोल्यूशन बना हुआ है। और आप जानते हैं ओ लेवल केमिस्ट्री में पढ़ाया है आपको कि अगर आपकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी चेंज हो जाता है। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। दैट्स व्हाट यू हैव डन इन ओ लेवल्स, राइट? सो अकॉर्डिंग टू ओ लेवल केमिस्ट्री, one variable which must be controlled is concentration because rate of diffusion changes if concentration changes. Okay, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कंट्रोल करना होगा और कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि जो कंसंट्रेशन में K2Cr2O7 की लूं वही K1O4 की भी हो। So since both exist in solution, both exist in solution, so we need to keep the concentration constant, and this must be the control variable. अच्छा, इससे पहले हम आगे जाए, हम यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं। यहाँ करते हैं ऐड। देखें, डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, है ना?
तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि भाई डिफ्यूजन जो है या रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू ओ लेवल केमिस्ट्री एमआर पे, टेम्परेचर पे और कंसंट्रेशन पे। सही, ये ध्यान में रखना। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। दैट्स अ लेंथी क्वेश्चन। ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट, other than wearing eye protection, state one safety precaution the student should take if they were to use potassium dichromate 6। आप जानते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं वो कोरोसिव होते हैं, तो वी नीड टू वेयर केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स। तो हम लिखेंगे यूज केमिकल रेजिस्टेंट gloves। Okay, last part of the question, another student suggests that to compare the rate of diffusion between potassium dichromate and KMnO4, it would be easier to place solid crystals of each of these compounds into the holes in two petri dishes of permeable membrane। Remember, हमने इससे पहले solution बना के उसको हमने पेट्री डिश के अंदर प्लेस किया था। स्टूडेंट अब कह रहे हैं कि भाई सॉल्यूशन के बजाय सॉलिड क्रिस्टल यूज कर लो। बेटा सॉलिड्स का तो डिफ्यूजन होता ही नहीं है, आप जानते हैं, आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में पढ़ा है। गैसेस डिफ्यूजेस मोस्ट रैपिडली, उससे कम जो है वो लिक्विड का होता है, और सॉलिड का तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहला बात कर लेते हैं कि सॉलिड क्रिस्टल्स हैव लोअर रेट ऑफ डिफ्यूजन। सॉलिड्स हैव solids have lower rate of diffusion। ठीक है, तो पहली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो यही आ गई कि भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत कम होगा। सही है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको तमीज से अगर हम लिखना चाहें, हम लिखेंगे सॉलिड्स हैव लोअर रेट ऑफ डिफ्यूजन। ओके, देन सॉल्यूशन। इसका मतलब जब स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा तो टाइम ज्यादा लेगा। ठीक है, so more time is needed। एक और भी तो मसला है ना, कुछ सॉलिड जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं और कुछ सॉलिड जो हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, राइट। तो अगर सॉलिड इनसॉल्युबल हुआ तो जाहिर सी बात है वो तो मुमकिन ही नहीं होगा फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन डिटरमाइन करना उसके लिए। some solids have solubilities issues। some of them are soluble, some of them are insoluble, तो हमें पता ही नहीं होगा, तो वो डिफ्यूजन के लिए प्रैक्टिकल नहीं होगा बिल्कुल भी। दूसरा क्या है, जो सॉलिड के क्रिस्टल्स होते हैं, जाहिर सी बात है इसका भी सॉलिड का क्रिस्टल होगा, इसका भी सॉलिड का क्रिस्टल होगा, और दोनों क्रिस्टल का जो साइज है वो डिफरेंट होगा। जब साइज डिफरेंट होगा तो जाहिर सी बात है जो डिफ्यूजन होगा वो भी आपको बहुत इरेगुलर पैटर्न पे मिलेगा। तो जब इरेगुलर पैटर्न पे मिलेगा तो डायमीटर को डिटरमिन करना डिफिकल्ट होगा, या डायमीटर की मेजरमेंट को करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सॉलिड क्रिस्टल्स have different sizes, so
they will diffuse. So they will diffuse with irregular pattern. जब irregular pattern होगा तो obviously it is difficult to measure the diameter. Accurate diameter को measure करना difficult होगा. Okay, that's the end of question number 2. Thank you very much.